ઓડિશાના બાલાસોરમાં 3 ટ્રેનની અથડામણમાં ભીષણ ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાઈ। દુર્ઘટના એટલી ગંભીર હતી કે અત્યાર સુધી 280ના મોતનો આંકડો સામે આવ્યો છે, જ્યારે 900થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત બન્યા છે। બાલાસોરના બહગાના સ્ટેશન પાસે પહેલા બેંગલુરુ હાવડા સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસની માલગાડી સાથે ટક્કર થઈ અને ત્યારબાદ માલગાડી કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ સાથે અથડાઈ હતી। અથડામણ એટલી જોરદાર હતી કે કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી અને ટ્રેનના અનેક ડબ્બા માલગાડી પર ચડી ગયા હતા તો 7 ડબ્બા ઊંધા પડી ગયા। 4 ડબ્બા રેલ બાઉન્ડ્રીની બહાર નીકળી ગયા હતા। કુલ 15 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા। દુર્ઘટનાના પગલે ઓરિસ્સામાં એક દિવસનો રાજકીય શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ દુર્ઘટનાને લઈને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું। કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રેસ્ક્યુ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। હાલ યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે। એનડીઆરએફની 3 ટીમ તો એસડીઆરએફની 4 ટીમ દ્વારા ઘટના સ્થળે રેસ્ક્યુ ચાલી રહ્યું છે। ફાયર બ્રિગેડની 20 ટીમ અને 120 એમ્બ્યુલન્સ ઘટના સ્થળે તૈનાત છે। ભુવનેશ્વર સુધીની 132 નાની મોટી હોસ્પિટલ્સને સ્ટેન્ડ બાય પર રહેવા સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। 150 જેટલા આરોગ્ય કર્મીઓની મદદથી 30થી વધુ ડોક્ટર્સ દ્વારા ઘટના સ્થળે જ સારવાર આપવામાં આવી રહી છે। દુર્ઘટનામાં મૃતકોના પરિવારને 10 લાખ અને ગંભીર ઘાયલોને 2 લાખની સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। બચાવ માટે હેલિકોપ્ટરની મદદ પણ લેવામાં આવી છે અને રેલવે મંત્રાલય દ્વારા હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Railway safety should always be given the first preference. People have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. All our heart really goes out to the bereaved family, and I think the priority has to be to save as many lives as possible. And I think at this point in time, one needs a lot of doctors, plenty of medicines, and unless and until those things are there, it becomes a little difficult, but it certainly is a great tragedy. Yes, so our heart really goes out to the bereaved family. उड़ीसा में जो हादसा हुआ ये दुखद हादसा है और इस हादसे में जो मृत व्यक्ति और जो इंजर्ड है उनके प्रति सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री इन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं और जो इंजर्ड है या जो मृत है उनको नज़दीक जो भी हॉस्पिटल फिर उड़ीसा में कटक हो, भुवनेश्वर हो, बालेश्वर हो, कलकत्ता हो, एम्स हो, उस हॉस्पिटल में एडमिट करने का काम चल रहा है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना। It's a very tragic incident. It's a huge loss of life, and we are hopeful that as we work through the day today to clear the remaining coaches, we'll find more live people to bring out of those coaches, and we are working with all the forces there on ground in total coordination. I'm hopeful this will get completed by today evening. अजय हमारे साथ जोड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है, रेलवे दुर्घटना हुई है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। साथ ही साथ एक समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। कितने बजे समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है और कौन कौन इसमें उपस्थित रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये समीक्षा बैठक की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब से केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार में चल रही है, तब से न सिर्फ रेलवे का कायाकल्प करने की कोशिश कर रही है बल्कि तकनीकी तौर पे रेलवे को इतना मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी मौसम में सपोज दैट कि अगर फॉग की कंडीशन है तो रेलवे ड्राइवर को सिग्नल देख के चलने की ज़रूरत ना हो बल्कि उस टेक्निकल जानकारी उसके पास मिल जाए। और ये सारा कुछ इसलिए किया गया था कि पहले जिस तरह से रेलवे दुर्घटनाएं लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी उस पर कंट्रोल करने के लिए किया गया था और लगभग इस तकनीक का प्रयोग रेलवे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब जगह किया जा रहा था। बावजूद इसके बड़े लंबे समय बाद इतना बड़ा और इतना भयानक हादसा हुआ कि जिसमें न सिर्फ एक मालगाड़ी पहले
पहले से ही ट्रैक पे खड़ी थी, बल्कि उससे एक पैसेंजर ट्रेन टकराती है और बाद में दूसरी ट्रेन भी उससे टकराती है। कुल मिला के 3 ट्रेनें को टकराने के बाद इतनी बड़ी कैजुअलिटी देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, किन वजहों से हुआ है इसकी जांच पड़ताल जरूरी है। तो इसी सब के लिहाज से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि इस सब के पीछे क्या है और क्या कुछ इनपुट हो सकता है, किस तरह से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं और किस तरह से इसके बचा जा सकता है। इसी सब को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें न सिर्फ रेल मंत्रालय से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, खास करके एमओएस, क्योंकि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो मूल लोकेशन पे पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये जो कैजुअलिटी हुई है उसको डील किया जाए, उससे निजात पाई जाए। तो इसी क्रम में जितने भी रेलवे मंत्रालय से जुड़े हुए टेक्निकल ऑफिसर होंगे और जितनी भी जरूरतमंद लोग होंगे, उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक है। ये बैठक कब होगी अभी इसका टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन 10:30 बजे से, चूंकि आज एनवायरमेंट डे है और इस मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें चीफ गेस्ट है, विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम चल रहा है। माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो रेल का ये जो उड़ीसा में हादसा हुआ है उस पर भी उनकी टिप्पणियां आ सकती हैं, संवेदना आ सकती हैं। लेकिन इस जो बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है प्रधानमंत्री आवास पे हो सकती है, टाइम अभी आना बाकी है। लेकिन ये पूरा हादसा निश्चित तौर पे काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से तमाम सारे काम कर रहे हैं, यहां तक कि सेना को उतारा जा चुका है और रजिस्टर्ड जो पैसेंजर थे उनकी संख्या करीब 1200 बताई जा रही है। जो पहली ट्रेन है जो लास्ट में सबसे ट्रेन टकराई थी उसमें 1000 पैसेंजर रजिस्टर्ड पैसेंजर सफर कर रहे थे, जबकि दूसरी ट्रेन में 200 लोग थे, जनरल बोगी का छोड़ करके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 238 लोगों की मौत हो चुकी है, 650 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं, जिसमें कई की कंडीशन ऐसी है कि कैजुअलिटी की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है उस डिब्बे में दब करके फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना काफी चुनौती भरा काम है। तो इसी के लिए सेना बुलाई गई है और जो भी एक्सपर्ट टीम है उसको पूरी तौर पे लगाया गया है। तो फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन इधर बीच ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की सत्ता में 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर के पूरे देश भर में कई सारे कार्यक्रम रखे गए थे, उन सभी कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल पूरे देश का फोकस इसी बात पे है कि जो वहां पे कैजुअलिटी हुई है उसको किस तरह से निपटा जा रहा है और उसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां के पैसेंजर इस पूरे सफर में शामिल थे, तो निश्चित तौर पर उनकी कैजुअलिटी बढ़ी है। तो उसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की तरफ से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से बातचीत भी की गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।